Yeah, students, let's continue. So where we have left in the last lecture, I think exercise 1.1 में एक क्वेश्चन में भूल गया था, लास्ट वाला 8th क्वेश्चन करने के लिए, और जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है वो आया आंसर्स? यस सर. ओके, सो एक क्वेश्चन और रह गया था. लेट्स सॉल्व दैट आल्सो. या, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. Now see, what is given is question number 8. F of x is equal to x square plus 5 and g of x equals to e raised to x plus 3. First thing, they have given a hint at the bottom. Okay, so let us find out one by one. Firstly, they are asking, what is f of g of x? So instead of directly giving the answer, I'll show you the steps. What is f of x? It is x square plus 5. अब x के जगह g of x डाला है, तो यहां पर भी x के जगह पे लिखिए g of x the whole square. Constants will remain as it is. Okay. अब second step होता है g of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना. e raised to x plus 3 the whole square plus 5. So when you expand that, okay, क्या मिलेगा आपको? e raised to 2x, e raised to x the whole square को हम e raised to 2x भी लिख सकते हैं. 3 2s are 6, e raised to x plus 3 का स्क्वायर होता है 9 and plus 5. ये देखो मैंने a plus b the whole square का फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट किया. तो फाइनली जो आंसर आपको लिखना है वो है e raised to 2x plus 6 e raised to x 9 plus 5 is 14. okay? ये आपको यहां पर लिखना है. अब अगले स्टेप में आपसे क्या पूछा है? g of f of x that is equals to, अब g of x क्या है? e raised to x plus 3. तो what will be g of f? तो ये x के बदले f लिख दीजिए. e raised to x के बदले f of x plus 3. That means e raised to, अब f की वैल्यू है x square plus 5 and plus 3. ये हो गया आपका g of f of x. तो ये फर्स्ट 2 ब्लैंक्स हमने कंप्लीट किया. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. थर्ड में आपसे पूछा है f dash x equals to and g dash x equals to. I'm sure f dash x आपसे पूछा है तो आपके लिए बहुत ही आसान है. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 इज कांस्टेंट, उसकी डेरिवेटिव 0. एंड अगर g dash x की वैल्यू पूछता है तो e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x, 3 कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0. So, okay, now derivative of f of g of x. So when someone asks you d by dx of, derivative means d by dx of f of g of x. Remember, इसका हम आंसर हर बार फिक्स्ड वे में देंगे. इट इज f डैश, जो भी अंदर कंपोजिट पार्ट है एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय जो अंदर कंपोजिट पार्ट है उसकी सिर्फ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके लिख देना है, g डैश x. ओके, सिमिलरली अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज d by dx ऑफ g of f of x, yes, anyone can tell me what should I write the answer for this?
ये स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं क्या लिखूं? ऊपर देख लो, आपको दिया मैंने एक का सॉल्व करके। G dash G f of dash x. f of x g dash f of x, dot f dash x. yes, dot f dash. Is that okay? Now ये in terms of f and g हमको लिखना था. Now they are expecting us to find the value of d by dx of f of x की वैल्यू भी पूछा है साथ में, ओके? एंड d by dx of f of, एक मिनट, d by dx of f of g of x, सॉरी मैं उसको ही आगे लिख देता हूं उसका आंसर. They have asked the answer in two different ways. एक in terms of f and g और दूसरा उसकी एक्चुअल आंसर. तो सबसे पहले हम f and g के टर्म्स में आंसर लिख दिए. अब इसी को कंटिन्यू करो. f डैश आप देख सकते हो 2x है, तो f डैश g क्या होगा? 2 इंटू x के बदले आप लिखोगे g of x into g dash x. G dash x you have already written, e raised to x. So 2 into, अब g of x की वैल्यू क्या है? e raised to x plus 3, ब्रैकेट में लिखो e raised to x plus 3 into e raised to x, or you can say it is 2 e raised to x bracket e raised to x plus 3. So ये आंसर नंबर स्टेप 2 का है और ये फर्स्ट स्टेप का है. देखो, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हो तो दे आर आस्किंग यू व्हाट? d by dx of f of g of x in terms of f and g. तो in terms of f and g ये वाला आंसर आपको लिखना है, ठीक है डियर? एंड सेकेंड पार्ट में d by dx of f of g of x पूछा है तो वो आपको आंसर ये वाला देना है. चलिए, उसी तरह इसका भी हम आंसर कर सकते हैं. हाउ वुड वी राइट दिस वन? g dash is e raised to x. तो e raised to, अब x के जगह पे यहाँ पे f लिखा है ना, तो यहां पर भी आप लिखोगे f of x into f dash x into f, sorry I lost everything, something happened, I'll just write this again. Question number 8, f of x is equal to x square plus 5 and g of x is equal to e raised to x plus 3. So first step, f of g of x यानी कि g of x the whole square plus 5, g of x की वैल्यू e raised to x plus 3 the whole square plus 5, e raised to 2x, 6 e raised to x plus 9 using the formula a plus b the whole square plus 5. Further simplifying this, we get e raised to 2x, 6 e raised to x, 9 plus 5, 14. Then g of f of x, okay, that is equal to, now e raised to x के बदले f of x plus 3, e raised to x square plus 5 plus 3. नेक्स्ट स्टेप में हमको f dash x का आंसर देना. f dash x is 2x and g dash x का आंसर देना है, that is equals to e raised to x. Find, दो स्टेप में आंसर यहाँ पे पूछा है, d by dx of f of g of x. Okay, f of g of x. First in terms of f and g, तो हमने पहले बताया था आंसर f dash g of x और बाद में कंपोजिट फंक्शन g का डेरिवेटिव g dash x. एक आंसर ये है. एक्चुअल आंसर चाहिए तो हमको f dash यानी कि 2x के अंदर x के जगह पे g लिखना है. 2 g of x
into g dash x. अब एक काम करो, g dash x और g of x की वैल्यू डालो. g of x की वैल्यू e raised to x plus 3, g dash x की वैल्यू e raised to x. So you are getting the answer as 2 e raised to x into e raised to x plus 3. ये हो गया आपका. Then let us answer what about d by dx of g of f of x. Okay, इसका आंसर आएगा g dash f of x into f dash x. ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर इन टर्म्स ऑफ f and g. सेकंड देख लो. अब g dash is e raised to x, तो x के बदले क्या लिखना है? f of x. f dash x. अब f of x और f dash x की वैल्यू डालो. f of x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 5 इंटू f dash x की वैल्यू है e raised to x. अब क्योंकि बेस दोनों का सेम है, पावर्स कैन बी एडेड. e raised to x square plus x and plus 5. That should be your answer. तो ये आपके स्टेप नंबर 2 का आंसर है. I hope so there should be an answer like that. सर f dash वैल्यू तो 2x है. हाँ, क्या चीज? f dash x की वैल्यू तो 2x है ना. ओह सॉरी, मैंने g dash x की वैल्यू डाल दिया. सॉरी, ये गलत है. ठीक है, तो f dash x की वैल्यू आपको 2x है, सॉरी वो सब्स्टिट्यूट करना है. Okay, it is 2x. So your answer is e raised to x square plus 5 into 2x. ये आपका फाइनल आंसर यहीं पे स्टॉप कर सकते हो. Okay. Now let us try and answer further. और भी आगे क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको आंसर करते हैं. They are asking the value at x equal to 0. d by dx of f of g of x at point, I hope so it is x equal to 0. Yeah, x equal to 0. देखो ये आंसर आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, है ना. d by dx of f of g of x आपको क्या मिला है? 2 e raised to x ब्रैकेट e raised to x plus 3. लेकिन ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या है? 0. तो you'll put 0 and 0. I'm sure anything raised to 0 is what? 1. तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 plus 3. So it is 2 into 4 or the correct answer is what? 8. आ जाओ सेकेंड पार्ट पे. d by dx इधर लिखना मुश्किल है थोड़ा सा. इधर so over here d upon dx of g of f of x. अब g of f of x की वैल्यू क्या है आपके पास? और ये पूछा एट द वैल्यू x इक्वल टू -1. एट x इक्वल टू -1, तो आपका आंसर आएगा 2x, x की वैल्यू -1, e raised to x square यानी कि -1 the whole square plus 5. 2 into -1 is -2, e raised to 1 plus 5, or the correct answer is -2
e to the power 6. ये आपका आंसर है. Okay, that should be your answer. I hope you all should get this answers. ठीक है. तो ये कंपोजिट फंक्शन का देखो कॉन्सेप्ट ये वाला है. ये जो f of g of x करते हो, ये सब चीजें याद रखना है ताकि आपको कंपोजिट फंक्शन सॉल्व करने में इजी गिरे. अभी वट एवर एग्जाम्पल्स आप लेफ्ट एज असाइनमेंट, उसमें जो भी डिफिकल्टीज है वो मुझे सेंड कर देना. मैं उसके सॉल्यूशंस आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर से पहले भेज दूंगा. ओके, तो ये जो पीडीएफ मैंने भेजा नहीं है, मैं इसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट लेक्चर तक भेज दूंगा. अभी अपने को अगला जो एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, दैट इज अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो एक काम करते, सबसे पहले तो दो थियरम कर लेते हैं हम. I'll end this presentation and show. Now, हम लोग लास्ट लेक्चर में एक थियरम मैंने नहीं किया था फर्स्ट एक्सरसाइज. तो एक काम करता हूं, मैं पहले वो थियरम कंप्लीट कर लेता हूं आप लोगों को. ओके, तो द फर्स्ट थियरम दैट यू हैव इज theorem 1. If y is equal to f of u is a differentiable function of u and u is equal to g of x is a differentiable function of x. Okay, so y is differentiable function of u and u is a differentiable function of x, such that the composite function such that the composite function y is equal to f of g of x. Okay, y is equal to f of g of x is a differentiable function of x, is a differentiable function of x, then dy upon dx is equal to dy upon du into du by dx. ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है. अब अगर 11th में आपको याद हो, हमने 2-3 थियरम किए थे, u प्लस v, u माइनस v, u इंटू v, u अपॉन v, 4 थियरम. ओके, तो वो 4 थियरम को सॉल्व करने का जो बेसिस था, हम इसको भी एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सॉल्व करते हैं. ओके, लेट्स सी वन बाय वन हाउ वी एक्चुअली सॉल्व इट. राइट, so what you do is consider delta x be a small increment
इन x, यहाँ पे x is treated as the independent variable. तो अगर x में चेंज होगा तो y और u जो है x से रिलेटेड है उसमें भी चेंजेस होंगे. तो विल से let delta u and delta y be corresponding increment in u and y respectively. Then consider this statement. Delta y upon delta x is equal to delta y upon delta u into delta u upon delta x. आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट मैंने कहां से लिया, आप अपना क्वेश्चन देखो ध्यान से इधर. ठीक है, इधर देखिए ये दिख रहा है, ये d के टर्म में लिखा और ये मैंने किस में लिखा, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा. आई हैव जस्ट टेकन दैट सेम थिंग ओवर हियर. अब फर्स्ट स्टेप ये कंसिडरेशन करना है. यूजुअली इट इज टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. अगर आप 11th स्टैंडर्ड को ध्यान से देखोगे तो भी हम लोग ने ज्यादातर इसी तरह से किया हुआ है, या फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हमने किया होगा. ओके, देन सेकेंड स्टेप इज टेक लिमिट, take limit delta x tends to 0 on both sides. Therefore, okay, limit delta x tends to 0 delta y upon delta x equals to limit delta x tends to 0 delta y upon delta u into delta u upon delta x. इसको सेपरेट करो. You will be writing this as limit delta x tends to 0 delta y upon delta u, एक ब्रैकेट में, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x. आई होप सो यहां तक कोई इश्यू आपको नहीं होना चाहिए. जो हमने यहां पे लिखा है वही चीज दोबारा लिखे, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया है, लिमिट का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई कर दिया. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इज अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स, और ये तो हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है, एंड दिस लिमिट इज अप्लाइड टू बोथ द टर्म्स. नाउ व्हाट यू हैव टू सी इज, ध्यान से देखो, इस टर्म के नीचे डेल्टा x है, लिमिट इज डेल्टा x टेंड्स टू 0. ये फैक्टर में भी डेल्टा x है डिनोमिनेटर में, लिमिट इज डेल्टा x टेंड्स टू 0. बट यहां पे आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में है डेल्टा u, ओके, बट लिमिट क्या है, डेल्टा x टेंड्स टू 0. तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कोई टर्म आता है तो वहां पे आपको लिमिट चेंज करनी पड़ती है. एंड लिमिट चेंज करने का सिंपल सा आइडिया क्या है, खाली इतना लिख दो, एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 delta u also tends to 0. Why? Because both are dependent on each other. मतलब u is dependent on x. u जो है x पे डिपेंड करता है, तो x की वैल्यू अगर बहुत ही स्मॉल है तो u के अंदर जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, infinitesimally small. तो if x is tending to 0 then u should also tend to 0. You just have to give this much statement. अब नेक्स्ट हम स्टेप पे जाते हैं. आपको करना कुछ नहीं, ये जो स्टेप आपने लिखा है सेम चीज लिखोगे, सिर्फ क्या है, ये x के जगह पे u कर दोगे आप. रेस्ट एवरीथिंग यू आर गोइंग टू कॉपी इज दिस सेम स्टेप. इसी स्टेप को आइडेंटिकली मैं कॉपी कर रहा हूं. जस्ट हैव अ लुक एट दिस नाउ. देयरफॉर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0
डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, लिमिट पहले क्या था डेल्टा x, अब हम क्या लिखेंगे डेल्टा u टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा u फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट जो है जैसे का तैसा कॉपी करना है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। आप देख लो दोनों स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, बहुत नॉमिनल सा चेंज किया है। ये स्टेप देख लो, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, आई हैव कॉपीड द सेम थिंग। अब यहां पे देख लो, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा u, ये x के जगह u लिख दिया, जस्ट हैव अ लुक, लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा u, देन अगेन लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। अब देख लो यहाँ पे सेम चीज कॉपी किया, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, यहां तक लिखना है। अब आप क्वेश्चन में जाके ध्यान से देखिए क्या लिखा है, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। उसका मतलब होता है कि ये जो पार्ट है इट इज डिफरेंशिएबल, y इज डिफरेंशिएबल, दैट मींस दिस लिमिट विल एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। ओके, तो यू विल से since y is a differentiable function of u, therefore limit delta u tends to 0, delta y upon delta u, that is equal to dy upon dx, okay, exist and is finite. dy upon du सर ना, सॉरी upon du, आदत है भूल जाते हम लोग, it has to be written du not x, okay, dy upon du, इधर गया du, exist and is finite, okay। सिमिलरली अब ध्यान से देखो सेकेंड टर्म में क्या लिखा है, u is a differentiable function of x। तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, du अपॉन dx। ये भी क्या आएगा, exist and is finite, ठीक है डियर। सो इट विल एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। अब ध्यान से देख लो, आपके RHS में दो लिमिट थे, दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं, दोनों फाइनाइट है। तो एज पर रूल LHS में जो लिमिट है शुड ऑल्सो एग्जिस्ट एंड बी फाइनाइट, ओके। So we'll give a statement over here. Since the limits on RHS exist and is finite, therefore the limit on LHS should exist and is finite। इसका मतलब कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x is equal to dy by dx, exist and is finite। This implies, अब ये सारे वैल्यू आप इस स्टेटमेंट में पुट कर दो,
तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के बदले आपने लिख दिया dy बाय dx इक्वल टू सामने आप लिखोगे dy अपॉन du into du upon dx. This is what was required. ये जो स्टेटमेंट है मैंने आपको 11th में भी अगर ध्यान आप कर सकते हो तो 11th में मैंने आपसे कहा था कि these statements are going to be very useful and almost जितने भी हम theorems करेंगे उसमें ये स्टेटमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे. तो ये y is a differentiable function of u या u is a differentiable function of x, x is a differential function of y, whatever it is written, उसका मीनिंग एकदम क्लियर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इसका मतलब है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है. तो ये जो लिमिट है दैट विल एग्जिस्ट एंड विल बी फाइनाइट. ओके, इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट होती है और वो आंसर फाइनाइट है एंड उसको हम इसी तरीके से लिखेंगे. देखो सेकंड स्टेटमेंट भी हमने सेम चीज मेंशन किया विदाउट चेंज ऑफ वर्ड्स. एक बार फिर से आप देख लो. विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन अगेन. तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि y is equal to f of u is a differentiable function of u. u is equal to g of x is a differentiable function of x such that the composite function y is equal to f of g of x is differentiable function of x. तो आपने को प्रूफ करके दिखाना है कि y is a differentiable function of x. और ऐसे कंडीशन में जो आंसर हम लिखेंगे वो होगा dy by dx equals to dy by du dot du by dx. तो फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x. तो वी कंसीडर्ड कि देयर इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x डेल्टा x. x चेंज होगा तो ऑब्वियसली u एंड y व्हिच आर इनडायरेक्टली रिलेटेड कैन आल्सो चेंज. तो delta u and delta y are the corresponding increments in u and y respectively. Delta y upon delta x is equal to delta y upon delta u into delta u upon delta x. वैसे यहाँ पे देख लो delta u cancel, delta u y upon delta x, यहाँ पे भी delta y upon delta x ही है. सिर्फ मुझे ये प्रेजेंटेशन इससे मैच करना था इसलिए मैंने यहाँ पे delta u से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. Now what do we do? ये स्टेटमेंट लेने के बाद लिमिट अप्लाई करते हैं. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 मैंने अप्लाई किया दोनों साइड में. यहां पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया. दिस लिमिट वाज अप्लाइड टू बोथ द टर्म्स. अब एरर क्या दिखाई दे रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में डेल्टा u है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x है. याद रखना जो डिनोमिनेटर में आप डिफरेंशिएट उसी के साथ करते हो तो लिमिटिंग टर्म भी उसी का अप्लाई होना चाहिए. तो यहाँ पे u डिनोमिनेटर में है तो लिमिटिंग टर्म भी डेल्टा u ही होना चाहिए था. इसलिए हम क्या करते हैं, ये एक स्टेटमेंट देते हैं. कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. फंक्शन कंटिन्यूअस जब होता है तब ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल होता है. एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u आल्सो टेंड्स टू 0. अगर यहाँ पे y लिखना होता तो मैं सिंपली लिखता एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y आल्सो टेंड्स टू 0. अप्लाई किया. आप देख सकते हो सेम स्टेटमेंट ऊपर वाला कॉपी किया है, सिर्फ एक चेंज किया है. यहाँ पे हमने x के बदले यहाँ पे ये u लिखा हुआ है. रेस्ट एवरीथिंग इज आइडेंटिकल. देन वी रीड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u. उसका मतलब क्या होता है कि ये जो लिमिट है डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u will be equal to dy upon du. This will exist and is finite. Same way, u is a differentiable function of x. Therefore, the limit delta x tends to 0, delta u by delta x is equal to du by dx. This also exists and is finite. अब RHS में यही दो लिमिट्स थे, दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं, दोनों फाइनाइट है. तो LHS में जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट होगा और वो भी फाइनाइट होगा. तो वो स्टेटमेंट हमने दे दिया, उसकी वैल्यू लिख दी. ये सारे वैल्यूज इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करते हो and you get your final answer as expected. Okay? अब हाँ बोलो सर. आपने ये जो सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है y is a differential function of u, u is a differential function of x, इससे हम लोग ने इसको बताया कि ये exists and finite है. तो फिर सर हम लोग को जो गिवन दिया उसमें ये भी तो लिखा है कि कंपोजिट फंक्शन y is equal to f of g of x
is a differentiable function of x. तो फिर हम लोग यही स्टेटमेंट ऐसे y is a एक्चुअली उनको लिखना चाहिए था शो दैट, तो उन्होंने सच दैट लिख दिया. अच्छा Actually, the question should have been written, show that y is equal to f of g of x is a differentiable function of x. Okay. We are showing that thing actually. So it has to be written. वो statement का फर्क है, बरोबर. Actually वो दिया नहीं रहता है, वो हमको शो करना होता है. Okay, dear. ठीक है सर. Yeah. Any other thing? No sir. Yeah. चलिए, अब हम थ्योरम 2 पे प्रोसीड करते हैं. आई थिंक आप लोगों को ना 4 या 5 ही थियरम है डियर, तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में ये सब आ जाते हैं और यू कैन स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स. 3 से 4 मार्क्स के थियरम्स होते हैं, तो आप उसको अच्छे से स्कोर कर सकते हो. आप तो थोड़ा सा अटेंशन देना, बहुत ज्यादा है नहीं, यू डोंट हैव टू वर्क टू मच हार्ड. तो थियरम 2 का स्टेटमेंट देख लो. इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x is a differentiable function of x. If y is equal to f of x is a differentiable function of x on an interval I on an interval I and y is 1 1 on 2 and y is 1 1 on 2 and dy upon dx is not equal to 0 on the interval I. Also, if f inverse y is a differentiable function of f inverse y is a differentiable function of differentiable function on I, f of I there, but I'll write it as I, then d by dy d upon dy of f inverse y is equal to 1 upon f dash x is equal to 1 upon f dash x. इसका और एक मतलब होता है, और dx upon dy is equal to 1 upon dy by dx such that dy by dx is not equal to 0. Okay, ये अपने को करना है. Let's see how we can do that. देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दिया, 1 1 on 2 फंक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर इंटरवल I. ये 1 1 on 2 क्यों दिया जाता है? तो आपने 11th में सेट रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक फंक्शन का इनवर्स
एग्जिस्ट होगा अंडर द कंडीशन इफ द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए यहां पे मेंशन किया है कि इट इज अ 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो सी द प्रूफ इन दिस केस नाउ। So let delta x be a small increment in x. Let delta y be corresponding increment in y. Now consider delta x upon delta y into delta y upon delta x equals to 1. That is delta x upon delta y equals to 1 upon delta y upon delta x. ध्यान से देख लो, यही चीज हमने यहां पे लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही है, जस्ट ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा है, यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया और डिनोमिनेटर में ट्रांसफर किया अपोजिट साइड में। ओके, तो ये dy बाय डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हमने क्या किया, RHS के डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दिया, बट दे बोथ मीन वन एंड द सेम थिंग। एंड अगेन यू कैन सी, ये टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो, आपको एग्जैक्टली आइडेंटिकल दिखेगा। तो वंस वी हैव टेकन दिस, उसके बाद अगला स्टेप याद करो, हमने पिछले थ्योरम में क्या किया था, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 अप्लाई किया। ओके, एंड यहाँ पे ध्यान रखना, वी हैव टू मेंशन दैट दिस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। क्यों 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हुआ तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। टेक लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 delta x upon delta y, that is equal to 1 upon limit delta x tends to 0 delta y upon delta x। अब चेंज ऑफ लिमिट करना है, ध्यान से देख लो, इसके डिनोमिनेटर में डेल्टा x है, लिमिट भी डेल्टा x टेंड्स टू 0। ओके, नो प्रॉब्लम, बट इधर आ जाओ, डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, डेल्टा y, और लिमिट क्या दिखाई दे रहा है, डेल्टा x टेंड्स टू 0। सो वी आर एक्सपेक्टेड टू चेंज दिस। सो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट याद रखो, एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ऑल्सो टेंड्स टू 0। अब लिमिट चेंज करके स्टेटमेंट लिखो, दिस इंप्लाइज लिमिट, देख लो, खाली हमने x के बदले डेल्टा y टेंड्स टू 0 लिख दिया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, रेस्ट एवरी टर्म रिमेन्स एज इट इज, 1 अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब ये स्टेटमेंट होने के बाद फाइनली आप क्या लिखते हो, क्वेश्चन में स्टेटमेंट याद करते हो, since y is a differentiable function of x, इसका मतलब है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू
dy by dx exists and is finite. And one more thing, dy upon dx is not equal to 0. ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. अब RHS में एक ही टर्म है, वो भी एग्जिस्ट हो रहा है, फाइनाइट है. तो इसका मतलब जो लिमिट ऑन LHS है वो भी एग्जिस्ट होना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए. तो सिंस द लिमिट ऑन RHS exists and is finite, therefore the limit on LHS, okay, that is limit delta y tends to 0, delta x upon delta y is equal to dx upon dy, exists and is finite. Substituting, you will get LHS में देख लो dx upon dy, RHS में 1 upon dy by dx under the condition dy upon dx should not be equal to 0. So this is how we complete both the theorems. अब आप दोनों theorem को ध्यान से देखोगे तो आपको exactly identical ही दिखाई देगा. जो process of solving है दोनों के exactly same है. Just see the statement. सबसे पहले हमने increment वाला statement दिया, उसके बाद ये statement consider किया, limit apply किया, limit apply करने के बाद change of limit. Once you have done change of limit, you use the statement of differentiability from the question theorem. जो statement दिया उसमें से use करते हो. You write that the limit exists and is finite, उसकी value देते हो. RHS में limit exist हो गया, then you say the limit on LHS also exists and is finite, and you put in the statement and you get your final answer. तो most of the theorems आप इसी pattern में implement करोगे. ना अभी मुझे 11th स्टैंडर्ड में लेक्चर है, तो आई जस्ट स्टॉप और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपको बताता हूँ कभी लूंगा. ठीक है डियर. और आप लोगों ने अभी तक मुझे असाइनमेंट सबमिट नहीं किया. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला मुझे आने थे, वो अभी तक मिले नहीं मुझे. एक दो जन ने किया है बस, सिर्फ एक या दो जन ने, मोस्टली सब बाकी है. चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस टू वन बाय वन. लेट्स सी हु इज गोइंग टू आंसर मी एंड हु इज नॉट.